علی کی آنکھ ایک خستہ حال کیمپ میں کھلی تھی۔ زمین پر بچھا ہوا بستر دراصل مٹی اور کنکروں کا فرش تھا، جسے صاف کرنے کی زحمت بھی کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ چت لیٹا ہوا تھا۔ کمرہ ایک تنگ و تاریک بیرک معلوم ہوتا تھا، جس کی نہ دیواریں پوری طرح دکھائی دے رہی تھیں، نہ ہی چھت۔ گھٹن کا ایک شدید احساس اس کے اندر اتر رہا تھا، اور شاید یہی گھٹن اسے ہوش میں لے آئی تھی۔ جب ماضی کے ہولناک مناظر اس کے ذہن میں ابھرنے لگے تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یادوں کے سیلاب نے اسے ایک لمحے میں حال سے کاٹ کر وہاں پہنچا دیا، جہاں اس کے ساتھی ایک ایک کر کے قربان ہو چکے تھے۔ اب وہ اکیلا تھا، مگر اس کے چہرے پر نہ خوف تھا، نہ افسوس۔ وہ جانتا تھا، اس کی زندگی اب کسی ذاتی خواہش کی نہیں، بلکہ ایک مقصد کی امانت ہے، اور وہ مقصد ہی اس کی سانسوں کا محرک ہے۔ کچھ دیر بعد بیرک کے دروازے کے قریب ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی، اور اگلے ہی لمحے دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ 4 اسرائیلی سپاہی اندر داخل ہوئے۔ بغیر کوئی لفظ کہے، انہوں نے علی کے بازو پکڑے اور زبردستی اسے کھڑا کر دیا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ باہر کا منظر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، اور فضا میں ایک خوفناک ٹھہراؤ تھا۔ سپاہیوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، پھر اسے ایک کھلی جیپ میں بٹھا کر کہیں لے جانے لگے۔ رات گہری تھی، اطراف میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور صرف گاڑی کے ہیڈ لائٹس راستے کو چیرتی جا رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد جیپ ایک پتھریلی عمارت کے سامنے رکی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اتارا اور ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ کمرے کے وسط میں ایک میز رکھی تھی، اور اس کے گرد 3 اسرائیلی افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی علی کو اندر لایا گیا، روشنیاں پوری شدت سے جل اٹھیں۔ تینوں افسر اب اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھے، جیسے کسی قیدی نہیں، بلکہ ایک معمہ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک افسر نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، لبنانی نہیں ہے، شاید ایرانی ہو، یہ بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ عرب تو بالکل نہیں لگتا۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ بیروت سے گرفتار ہوا ہے، خیال ہے یہ اسلحہ خانے اڑانے والی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ سوال کا لہجہ سراپا الزام تھا۔ علی خاموشی سے ان کے چہروں کو دیکھتا رہا۔ کیا یہ درست ہے؟ اس بار افسر کی آواز اور بھی کرخت تھی، مگر علی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ افسر نے غصے میں دانت بھی دکھائے اور کہا، ہاں، تم سمجھتے ہو کہ زبان بند رکھ کر بچ جاؤ گے؟ ناممکن۔ ہمارے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ مرد کے زبان سے راز نکل جاتے ہیں۔ مشورہ یہی ہے کہ بول جاؤ، شاید تمہارے ساتھ رعایت ہو جائے۔ علی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سی ابھری۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ جان جاتے تو یہ منظر اتنا پرسکون نہ ہوتا۔ شاید اب یہ لوگ جشن مناتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، اور سمجھتے کہ ایک بڑا کارنامہ انجام دیا گیا ہے۔ افسر نے پھر غصے میں کہا، تم اب بھی جواب نہیں دو گے؟ علی خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، اسے بیرک نمبر 21 میں پہنچا دو۔ صبح کے لیے الگ انتظامات کیے جائیں گے۔ سپاہی علی کے چاروں طرف پھیل گئے۔ ہتھکڑیوں اور بیریوں سمیت اسے باہر لایا گیا، اور تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرا کے وہ اسے ایک کوٹھری کے سامنے لے آئے۔ پہلی قیام گاہ کے مقابلے میں یہ کوٹھری کچھ کشادہ تھی۔ اندر ایک پرانی چارپائی رکھی تھی، جس پر گندا سا بستر بچھا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے علی کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں کھول دیں، پھر دروازہ بند کر کے باہر چلے گئے۔ بیرک نمبر 21، علی کے لبوں پر ایک ہلکی بڑبڑاہٹ سی ابھری۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں کون ہوں؟ اس نے آہستگی سے خود سے کہا۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں پاکستانی ہوں، ہاں، پاکستان میرا وطن ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں ہنسی کی مدھم گونج ابھری، جیسے کسی گاؤں کی گلیوں میں بیلوں کے گلے میں بندھی گھنٹیاں بج رہی ہوں، اور ان کی کانوں میں کسی بانسری کی میٹھی لے گھل گئی ہو۔ میرا وطن، میرا چمن۔ علی کے لبوں سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے۔ بلے شاہ کی بستی، پنجاب کی حسین روایتوں کا امین، اس کا اپنا قصور۔
सादा दिल और सच्चे इंसानों की बस्ती, जहां मुल्क व कौम पर मर मिटने का जज्बा सांसों में बसता है, जहां माएं अपने बच्चों को वतन पर कुर्बान होने वालों की दास्तानें लोरियों में सुनाती हैं, जिसने हर दूर में अजमत के मीनार खड़े किए, हर हमला बर्दाश्त किया और हर बार अपने शहीदों के खून से इस मिट्टी को रंगा। हाँ, मैं उसी दिलेर शहर का रहने वाला हूँ। अली की आवाज में एक अज़्म था। उसी जमीन से मेरी शनाख्त है। अगर जिंदगी रंगों से बनी है तो उन रंगों की इब्तिदा उसी वादी से हुई। अगर हुस्न सच्चाई है तो इस वादी का हर मोड़ अपनी सदाकत की कहानी सुनाता है। हसीन महबूब का खमीर यकीनन उसी मिट्टी से उठा होगा। अली ने आह भरी, मुझे इस सरजमीन से अकीदत है। ये मेरी मिट्टी है और मेरी हर सांस में इसकी खुशबू बसी हुई है। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर आहिस्ता से बोला, गो मैं अपने वतन से हजारों मील दूर 7 पहाड़ियों के पार सैन फ्रांसिस्को में था, लेकिन मेरी हर रात अपने वतन के हसीन ख्वाबों से सजी होती थी। मुझे अपनी बस्ती का हर गोशा याद आता था। यादों की एक लहर इसके जहन में दौड़ गई। उस सुबह भी मैं अपने वसी सहन में बैठा था। अब्बा हसबे मामूल कुशादा तख्त पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और सहन के आखिरी सिरे पर रहीमुद्दीन चचा भैंसों के लिए काई काटने वाली मशीन चला रहे थे। धड़ाम धड़ाम की आवाज गूंज रही थी और फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। कसूर की वो हसीन बस्ती, वो मिट्टी, वो आवाजें, सब निगाहों से ओझल हो गईं। सामने मोटे हरबंसी के चेहरे का झाड़ झनकार था, जो हसबे मामूल उल्टा खड़ा होने की नाकाम कोशिश में मसरूफ था। वही उसके गिरने की आवाज थी जिसने अली को ख्वाबों की दुनिया से निकालकर फिर से तल्ख हकीकत में ला फेंका था। मेरी खूनखार निगाहों के जवाब में वो बेबसी से मेरी तरफ देखने लगा, फिर किसी सहमे हुए बच्चे की मानिंद नजरें झुका ली। इस गधे की ये मासूम अदाएं मेरे गुस्से को ठंडा कर देती थीं। जब भी मुझे गुस्सा आता, वो यूं सहम जाता जैसे मेरे नाज उठाना इसका फर्ज हो। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, मोटे, मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा। मुआफ कर दो भाई जी। यार, क्या बताऊं, बस ये उल्टा नहीं रुक पाता, वरना बाकी वर्जिशें तो मैंने अच्छी तरह सीख ली हैं। देखो, कुछ फर्क पड़ा या नहीं? उसने सांस रोके, पेट अंदर खींचते हुए कहा। मैंने दांत पीसते हुए कहा, फर्क सिर्फ एक ही तरह का होगा, जिस दिन में तुम्हारे पेट में चाकू घोंपकर सारी आंतें और चर्बी निकाल दूंगा। उसके बाद ना तुम्हारे अंदर कुछ बचेगा, ना तुम मोटे नजर आओगे। हरबंसी ने कहा, ओ यार, क्यों नाराज हो रहे हो? देखो तो 9 बज रहे हैं। लो, कल छुट्टी है, पूरे हफ्ते में एक दिन देर तक सो लेने से क्या बिगड़ जाना है? उसने मौजू बदलने की कोशिश में कहा। मैंने कड़वा सा जवाब दिया, मोटे, तुम्हें मालूम है तुम मुझसे क्या छीन रहे हो? हरबंसी बोला, अच्छा छोड़ो भाई जी, शायद तुम्हारी ख्वाबों में कोई बालों वाली लौंडी होगी, बस बिलावजा बात आगे बढ़ जाती है। जाग जाना ही अच्छा हुआ। उसने गहरी सांस ली। मैंने कंबल अपने बदन के गर्द लपेटकर तकिए से सहारा लेते हुए कहा, जा चाय ला मेरे लिए, वरना इस सर्दी में तेरा गरम खून पी जाऊंगा। मोटा ये इल्जाम सुनकर भड़कते हुए बोला, मैं 10-11 बजे तक सूंगा। और फिर नंगे तन ही किचन की तरफ भागा। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रह गया। हरबंसी असल में हरियाणा का सिख नौजवान था। वो बरिकले यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ रहा था, मगर खुद लाकानूनियत और बेफिक्री इसकी आदत थी। तालीम से ज्यादा उसे सिर्फ नाजुक से दिलचस्पी थी। लड़कियां हर वक्त इसके आसाब पर सवार रहती थीं। पहले इसका जिस्म मुतनासब था, मगर चूंकि वो बेहद खुश खुराक था, इसलिए खाता जा रहा था और मोटा होता जा रहा था। अपने मोटापे से हर वक्त फिक्रमंद रहता और कोशिशों में मसरूफ रहता कि किसी तरह वजन कम हो जाए। इसकी जाती लाइब्रेरी में कानून की किताबों से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की वर्जिश और सेहतमंद रहने के तरीकों पर मबनी किताबें थीं। हसीन लड़कियों को कैसे मुतासिर किया जाए, हुस्ने गिरफ्तार के राज, पुरकशिश रहने के राज जैसी किताबें भी इसकी खुसूसी दिलचस्पी का मरकज थीं। मगर जो वो वर्जिश करता और पुरकशिश बनने की कोशिश करता,
इसकी सरकश टोन और ज्यादा बाहर निकलती जा रही थी। इसकी वाहिद वजह इसकी खुशखुराकी थी। बिलावजह शराब पीता और नशे में उल्टी सीधी हरकतें करता। मुझे उसकी इन आदतों से चीड़ थी, लेकिन वो इतना मासूम और भोला था कि दिल नहीं चाहता था इससे अलग हुआ जाए। हरबंसी को अपनी दाढ़ी और सर के लंबे बाल सख्त नापसंद थे, मगर वो उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता था। वजह ये थी कि इसके वालिद श्रीमान गैरू सिंह एक बड़े कारोबारी शख्स थे, जो हर तीसरे चौथे माह अमेरिका आते। वो जब भी आते, सैन फ्रांसिस्को में अपने बेटे से जरूर मिलते और 2-3 दिन उसके साथ गुजारते। गैरू सिंह सख्त मजहबी मिजाज के आदमी थे और उनकी सख्त हिदायत थी कि हरबंसी अमेरिका में रहकर भी मजहब के उसूलों से इन्हिराफ ना करे। हरबंसी अक्सर कहा करता था, वो इंतहाई सख्त गिर इंसान हैं। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि मेरे दिल में कभी मजहबी उसूलों से दूर होने का ख्याल भी आया है, तो वो फौरन वापस बुला लेंगे। और मैं ये नहीं चाहता भाई जी। एक दिन उसने शिकायत के अंदाज में कहा, मैं दोहरी मुसीबत में हूँ भाई जी। अमेरिकन लड़कियां मेरी दाढ़ी और सर के बालों को छू छू कर देखती हैं और पूछती हैं कि ये क्यों हैं, और श्रीमान जी कहते हैं कि ये क्यों ना हो। मैंने हंसते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो हरबंस सिंह। सैन फ्रांसिस्को में तुम अकेले सिख नहीं हो, दूसरे भी हैं। फिर ये मगरिबी लड़कियां इनफिरादियत की शौकीन होती हैं। तुम उनके लिए एक मुनफरिद शख्सियत हो, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जह रहती हैं। वो मायूस लहजे में बोला, कहाँ भाई जी, एक एक के पीछे हफ्तों भागना पड़ता है। मेरी ख्वाहिश है कि लड़कियां खुद मेरे गर्द घूमें, रकाबतें करें, मगर किस्मत देखो, ऐसा होता ही नहीं। मैरियन हॉस्टल के एक कुशादा कमरे में हम दोनों साथ ही रहते थे और इस साथ को कई साल गुजर चुके थे। बहरुल काहिल के साहिल पर वाक़े सैन फ्रांसिस्को दुनिया के हसीन तरीन शहरों में शुमार होता है। एशियाई सयाहों और एशियाई आबादकारों के असरात यहाँ नुमायां तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ एशियाई उलूम की एक बाकायदा अकेडमी भी कायम है। बरिकले ओकलैंड ब्रिज के उस पार सैन फ्रांसिस्को से महज चंद मील के फासले पर वाक़े है। चुनाचे छुट्टी के दिन बरिकले में रुकना तालिब इल्मों के नज़दीक हिमाकत समझा जाता था। बरिकले के तकरीबन तमाम तलबा इतवार की छुट्टी सैन फ्रांसिस्को में गुजारते थे और उस दिन बरिकले का मंजर बिल्कुल वीरान सा लगता था। दुकानें बंद होती, कैफे बंद, यहाँ तक कि सड़कें और फुटपाथ भी जैसे आराम कर रहे हों। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को की सड़कों की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती थी। उस शहर की गलियों में शबाब की सरमस्तियां बिखर जाती थीं। खुशपोश बूढ़े मर्द और औरतें और उनके पहलू ब पहलू हसीन दोशीज़ाएं कीमती लिबासों में मलबूस बावकार अंदाज में खरामा खरामा चलती नजर आती। मौसम सुरमा में जब बहरुल काहिल की बर्फानी हवाएं शहर पर हमला आवर होती, तो हुस्नो शबाब की ये देवियां कीमती फैर के कोट ज़ेब तन करती। उनके कोट न सिर्फ सर्दी से बचाव का जरिया होते, बल्कि उनके हुस्न की रनाइयों को और भी निखार देते। स्कूल ऑफ लॉ में कानून की तालीम हासिल करने के साथ साथ मैं सैन फ्रांसिस्को की हसीन जिंदगी के दूसरे पहलुओं से भी बेबहरा नहीं था। इस रोशन और पुरकशिश शहर की रंगीनियां, तफरीगाहें और मसरूफियात मुझे भी लुभाती थीं। बादलों से ढकी फिजाओं के नीचे रवां दवां जिंदगी में मेरा भी एक हिस्सा था और यहाँ की बेशतर तफरीगाहें मेरे लिए अजनबी नहीं रह गई थीं। खास तौर पर छुट्टी का दिन तो हमेशा मैं शहर ही में गुजारता था। मेरे वालिद साहब एक बड़े जमींदार थे। जमीनों की बेपनाह आमदनी ने हमें एक खुशहाल और नुमायां खानदान बना दिया था। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन मेरी विलादत के फौरन बाद वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद साहब ने 5 साल तक उनके सोग में जिंदगी गुजारी। दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते थे, मगर एक मर्द के लिए अकेले जिंदगी गुजारना आसान नहीं, खुसूसन उसके लिए जो खानदानी रिवायात और आला अक़दार का कायल हो। चुनाचे अजीजों के इसरार पर वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली वालिदा से उनके 6 बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरी परवरिश मेरे नाना नानी ने की। वालिद साहब ने भी मेरी तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी। शायद उनके दिल में ये ख्याल था
कि सगी माँ की गैर मौजूदगी कहीं मेरे एहसास महरूमी का सबब ना बन जाए। यही ख्याल उनके जहन में उस वक्त भी मौजूद था जब मैं तालीम के लिए अमेरिका आया। मेरी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता था। ज़रूरत से कहीं ज़्यादा रकम मुझे बाकायदगी से मिलती रहती और मैं निहायत ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था। सैन फ्रांसिस्को की ऐशो इशरत गाहें मेरी पहुंच से बाहर नहीं थीं। कुर्बू जवार की लातादाद तफरी गाहें मैं बारहा देख चुका था। बहुत से लोगों से दोस्ती थी और अक्सर इतवार के दिन उनसे मिलने चला जाता था। हरबंस ने उम्दा चाय की प्याली मेरे हाथ में थमाई और दूसरी प्याली लेकर खुद बैठ गया। वो अब भी नंगे बदन था और उसके सीने और शानों पर रीछ जैसे घने बाल अजीब मालूम हो रहे थे। इस सख्त सर्दी में जबकि मुझे कंबल भी नाकाफी महसूस हो रहा था, हरबंस को नंगे बदन मौसम की शिद्दत से बेपरवाह देखकर मुझे हैरत हुई और मैंने पूछ ही लिया, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही हरबंस? अचानक वो चौंक पड़ा और चाय की प्याली उसके हाथ में कपकपाने लगी। दूसरे लम्हे इसकी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, मैं भी यही सोच रहा था भाई जी, कोई तो बात है, सर्दी ही तो लग रही है मुझे। वो जल्दी से उठा, अपनी मसहरी से कंबल उठाया और बदन के गर्द लपेटकर बैठ गया। तो फिर आज का क्या प्रोग्राम है भाई जी? कोई खास नहीं, बस सैन फ्रांसिस्को जाऊंगा और दिन वहीं गुजारूंगा, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। उसने शोखी से पूछा, किसी गर्लफ्रेंड के साथ? मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, कोई है ही नहीं। हरबंस ने हंसते हुए कहा, यारों से अर रहे हो भाई जी, वो नैसी, बारबरा और वो चैनी लोंडिया लौटीशी, क्या मेरी रिश्तेदार हैं वो सब? मैंने कहा, यकीन करो हरबंस, उनमें से किसी के साथ कोई प्रोग्राम नहीं है। हरबंस बोला, तुम आज मेरे साथ चलो, मोरा बड़ी खुश इखलाक लड़की है, उसने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, शाम तक का प्रोग्राम उसी के साथ है, चलो भाई जी, मजा आएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।